Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new topic, new chapter which is related to tenses. So we will start from the present tense बच्चों. यहाँ पर हम present से start करेंगे. So present indefinite tense. Present tense or present indefinite tense tells about an action that takes place at the present time, but the information given by the tense is indefinite. Affirmative sentences and affirmative sentence affirm something, जिसके अंदर affirm किया जाता है. word order देखेंगे बच्चों. subject will come first, then first form of verb as, es, then object or as plus v1 plus object. So only first form of verb is used with I, you and all plural subjects, and second first form of the verb joined with as, es is used with he, she, it and all singular subjects के साथ यूज किया जाता है. Look at the following sentences बच्चों. A fish swims in water. They drive their motorbikes. The soldiers fight for their country. She goes to school in time. She helps her brothers in the kitchen. I work hard. Negative sentences are negative sentence negate something. Negative sentence वो होते हैं बच्चों जो sentence जिसमें मना किया जाता है काम को. तो इसमें word order देख लेते हैं. Subject will come first, then do, does plus not plus first form of the verb plus object or as, do, does, not plus v1 plus object. Do is used with I, you and all plural subjects के साथ यूज किया जाता है, and does is used with he, she, it and all singular subjects के साथ हम यूज करते हैं. Look at the following sentences. My younger sister does not listen to me. Richard does not watch TV. He does not fight in the class. I do not tease animals. Interrogative sentences की बात करते हैं बच्चों, जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. And interrogative sentences is used to ask questions. Word order, question word, do, does, subject, first form of the verb, object or question word plus do, does plus as plus v1 plus object. Then in case of absence of a question word in the sentence, the interrogative sentence begin with do and does. Rules of use of do, does are similar to that of negative sentences. If the answer to the interrogative sentences comes in yes or no, a question word is not used. Common question word are what, when, how, why, where, how many, how much etc. तो मीन्स बच्चों कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पर होते हैं WH फैमिली से रिलेटेड, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन पूछते हैं और यस नो का आंसर भी दे सकते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. डज ही कम हियर एवरी डे? डू यू प्ले इन द इवनिंग डेली? How do you go to school? When does she swim? नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दी शोज कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन एट प्रेजेंट. जो भी बच्चों प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी को शो करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को. एन अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म सम एक्शन. तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर देख लेते हैं बच्चों, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस किए जाते हैं कुछ एक्शंस के लिए. वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट और S प्लस इज एम आर प्लस v1 प्लस ing प्लस o. मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. द वर्ड आर इज यूज्ड विद यू एंड all plural subjects. The word am is used with the subjects I only. The word is used with he, she, it and all singular subjects के साथ use किए जाते हैं. Look at the following sentences. They are laughing at the joke. I am going to see my aunt tonight. The train is arriving here at 10 p.m. sharp today. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस नेगेट्स एन एक्शन बच्चों, जैसे कि हमने बात की थी, ये एक्शंस को मना करने के काम करते हैं. वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing ऑब्जेक्ट और एस इज एम आर प्लस नॉट प्लस v1 ing प्लस ऑब्जेक्ट. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दे आर नॉट रेडी येट. वी आर नॉट सेलिंग द स्वीट्स. ही जस्ट नॉट कमिंग. इंटेरोगेटिव सेंटेंस द सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों. तो जिसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. वर्ड ऑर्डर का देखते हैं बच्चों, जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. देन फर्स्ट इफ द आंसर ऑफ टू अ क्वेश्चन इज इन yes और no, द सेंटेंस बिगिन विद इज एम आर. तो यहाँ पर बच्चों बताया गया इज एम आर से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होते हैं yes और no का आंसर उसके अंदर छिपा रहता है. द यूज ऑफ इज एम आर इज सिमिलर टू दैट द अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड के अंदर कॉमन क्वेश्चंस वर्ड्स आर what, when, how, why, where, how many, how much etc. Look at the following sentences. Why is the child crying? Is he bathing well? Are they waiting for me? नेक्स्ट है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. अभी हमने पढ़ा सिर्फ प्रेजेंट के बारे में, तो अब स्टार्ट करें पास्ट इंडेफिनिट को. फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों
पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस शोज सम एक्शंस दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट। ऐसे एक्शन बच्चों जो पास्ट में किए जाते हैं उनके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे दिया गया है बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म समथिंग। इसके अंदर अफर्म किया जाता है किसी भी चीज को। वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, और इसमें यूज करते हैं एस प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस ऑल सब्जेक्ट्स टेक प्लेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, वी अंडरस्टूड द मैटर, माई मदर कुक्ड फूड फॉर मी, ही थॉट गुड फॉर हिज फ्रेंड्स, ही स्पोक रूडली। नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में बच्चों डिड का यूज किया जाता है। A negative sentence negates something. Word order subject plus did not first form of verb plus object or s plus did plus not plus v1 plus object. Look at the following sentences. We did not get homework yesterday and they did not work in the field. That accident did not take place here. You did not tell me about this lesson. The interrogative sentence, we ask questions by using question word बच्चों, जिसके अंदर word order होता है, question word पहले लगाने होते हैं, plus did का use करते हैं, then plus subject plus first form of the verb plus object, और इसमें बच्चों शॉर्ट में भी बताया गया आपको क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 देन ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना होता है। इफ द आंसर्स टू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज इन येस और नो, अ सेंटेंस बिगिंस विद डिड। अगर बच्चों आंसर उसका येस और नो में निकल के आता है तो क्वेश्चन बनेगा हमेशा डिड से। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, व्हेन डिड यू बाय दिस टॉय एंड हाउ डिड दे कैच द रॉबर, डिड ही नॉट पे द स्कूल फी, हाउ डिड यू लर्न यस्टरडे, डिड यू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट टेंस कहलाता है बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके अंदर आप पास्ट की कॉन्टिन्यूटी को शो करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शोज कॉन्टिन्यूटी एंड एक्शन इन द पास्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एन अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म समथिंग, जिसके अंदर बताया गया जाता है बच्चों वर्ड ऑर्डर को फॉलो करना होता है। सब्जेक्ट यू विल यूज फर्स्ट, देन वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ विद आईएनजी के साथ आप यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और एस प्लस वॉज वर्ब प्लस v1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। द वर्ड वॉज इज यूज्ड विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड द वर्ड वर इज यूज्ड विद आई यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बच्चों, ही वॉज वेटिंग फॉर हिज ट्यूटर, you were always smiling, we were quelling for this mango, I was studying book in my room, they were traveling by train। and negative sentence की कैटेगरी में दिए गए हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेट समथिंग। वर्ड ऑर्डर के अंदर दिए गए हैं सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट, और आप लिख सकते हैं s प्लस was were प्लस नॉट प्लस v1 ing प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बच्चों, यहाँ पर दिए गए हैं शी वॉज नॉट ड्राइविंग द कार रैशली, अमित वॉज नॉट प्लेइंग वेल, द बॉयज वर नॉट stones at the bus and the peon was not ringing the school bell। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं तो बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। वर्ड ऑर्डर के अंदर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, देन प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट v1 ing देन ऑब्जेक्ट का आप यूज करेंगे। Then if the answers to an interrogative sentences comes to yes or no, the sentence begins with was or were से start होता है। The use of was and were is similar to that of the affirmative sentences। Look at the following sentences. Was the principal delivering speech? When was the gardener watering the plant? Were you leaving the office next month? Why were the farmers not harvesting the crops? तो यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल्स के साथ हमने सभी टेंसेस को देखा और सभी सेंटेंसेस को भी देखा, जिसके अंदर हमने अफर्मेटिव वाले, नेगेटिव वाले, इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस भी इस चैप्टर के अंदर कवर किए हैं विद एग्जाम्पल। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, और चैप्टर में बच्चों दी गई है रिलेटेड करती हुई कुछ एक्सरसाइज, तो वो भी कंप्लीट आप खुद से जरूर करेंगे।